Very good evening once again, friends. How is everybody doing today? All great? Can I see a wave of hands from all of you? All well? Great. A very warm welcome to everybody from the Velocity Genetics family, from our Vignet family, and also from our SHPL family. My name is Dr. Usha Nair. I am from Navi Mumbai. I am a certified nutrigenomic wellness consultant, and I'm here today. Very happy to note so many of you here. And precisely why are we here today? Well, friends, this is the 9th convocation ceremony of the online certificate course in nutrigenomics conducted and organized by Vignet, that is our Velocity Institute of Genomics, Nutrition and Entrepreneurship Training. So are we excited, friends? Can I see a waving of hands from all of you? Our typical Velocity genetic style. Say hi to everybody. Wonderful evening once again. And friends, it is so exciting, especially because there are 3 of our very beautiful families with us here. It is all our new students. We are so excited and happy to congratulate them on being successful. Get to know who are the top 10, and you have to wait till the end to see the very best who have done their very good performance in this 3-month certification course. Well, friends, a very warm welcome, especially also to all our newcomers here today. Why? Because without you, how will we be able to expand and spread our nutrition and genomic wellness knowledge and our aim of getting more and more entrepreneurs make a career out of their education in the field of nutrigenomics? Well, friends, a little set of rules like we have for every webinar. Please ensure you keep on mute. Unless asked to speak, we will be able to unmute you. If you have something to say, अगर आपको कुछ कहना है, please put it in the chat. And अगर आप कुछ कहना चाहते हो, you can even raise a hand. And as time permits, हम आपको allow करेंगे unmute करके बात करने के लिए. So friends, anything you want to say, please hold on at least till the end. But अगर फिर भी बहुत ही आतुर हो कुछ कहने के लिए, please put it in the chat box. And of course, at the end, do not forget to congratulate each and every member who has successfully passed this certification course of the 9th batch. So again, are we excited? Well, friends, the most important thing about me, I have been associated with Velocity Genetics and Vignet and SSPL, and I am with them with Velocity Genetics for a little over 5 years. We are in our 6th year. Yes, I am very excited, and my experiences, my aim, my mission is to spread this nutrigenomic wellness and help people in need. ये करने से हम एक बहुत अच्छी चीज कर पाएंगे, हम लोगों की लाइफ में बदलाव ला पाएंगे. एंड यस, एक बड़ी अच्छी चीज जो मैं आप सब लोगों से शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि सिंपल मेरे ये 5 साल की जर्नी और वेलोसिटी के बहुत सारे ऐसे साथी जिन्होंने ये टेक्नोलॉजी यूज करके लोगों की जिंदगी में बदलाव लाए हैं. Now, this is compiled into a book. I am an author of the book Gene Based Life, and that is going to be available to you from next week. So, friends, I am even more excited than you. But it is not about me today. It is about all of us who decided कि हम ये कोर्स करेंगे, अपनी जिंदगी बदलेंगे और लोगों की जिंदगी में बदलाव लाने में मदद करेंगे. So who else to begin this show other than हमारे एक गुरु, हमारे एक सीनियर, हमारे एक दिशा दिखाने वाले, एक ऐसे इंसान जिन्होंने ऑलमोस्ट 6 साल पहले ये एक विजन देखा, ये सोचा कि उनकी लाइफ में बदलाव आया इस साइंस ऑफ न्यूट्रिजेनोमिक्स से, तो क्यों नहीं ये बदलाव हम वन इंडिविजुअल, वन पर्सन एट अ टाइम अगर हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं, बहुत सारे लोगों को इसके बारे में सिखा सकते हैं, तो हम ये क्यों ना करें.
हम इस मिशन को आगे क्यों न बढ़ाएं? He introduced a company called as Velocity Genetics a little over 5 years ago, and today we are one of the premium genetic wellness company in India, being the pioneers in this industry. Well, I have lots and lots and lots to tell about him, but in short, to cut it short, I'm sure you all guessed it. Please help me welcome with our typical Velocity waving style, none other than the CMD of Velocity Genetics, the founder of Vignet, and yes, a big training support and mentor for SHPL, none other than Mr. Stan Sarao. Thank you, Dr. Usha, and good evening to each and everybody who is here. It's a Saturday evening and शनिवार के इस शाम को बहुत सारे options आपके पास available हैं, but then you have taken your valuable time and you are here, so I'm quite excited to see you all here. हर बार जब भी हम लोग CCNG certificate course in nutrigenomics का convocation करते हैं, and this is the 9th time that we are doing in the last 2 years, we definitely get excited and then एक fulfillment का feeling भी आता है, क्योंकि एक vision के साथ, एक मिशन के साथ ये एजुकेशन इम्पार्ट करने का एक प्रक्रिया हम लोगों ने जारी किया था. ऑफ कोर्स वी आर वेरी फेमिलियर विद द डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री. तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एजुकेशन तो रोज ही होता है, बट देन ये एजुकेशन थोड़ा सा हटके इसके लिए है क्योंकि ये थोड़ा सा बैक टू स्कूल अप्रोच है. ऑल द एल्डरली पीपल हु आर इनटू 50s 60s एंड 70s एक स्टूडेंट के जैसे क्लास सुनते हैं, क्लास को अटेंड करते हैं, क्वेश्चंस आंसर करते हैं, एग्जाम देते हैं एंड देन पास हो जाते हैं एंड रैंक अचीवर हो जाते हैं. सो वी हैव दिस वेरी यूनिक convocation ceremony. Right now it's happening on Zoom. I'm sure very soon it will happen off the record also. To begin with, I just want to share my screen, और मैं स्क्रीन के जरिए आप सभी लोगों को फिर एक बार हार्दिक स्वागत करना चाहता हूं इस कॉन्वोकेशन सेरेमनी में, जो CCNG का 9th बैच का सेरेमनी हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है. सो जैसे आप लोगों को कई सारे लोगों को पता रहेगा, बट देन फॉर द बेनिफिट ऑफ द न्यू पीपल आई वांट टू टेल यू दैट वेलोसिटी जेनेटिक्स का एक स्लोगन है हेल्दी पीपल हेल्दी नेशन, एंड इसके इसको हासिल करने के लिए वी स्टार्टेड जेनोमिक वेलनेस. हम लोगों को हेल्थ इंडस्ट्री पता है, लेकिन एक कदम आगे रखेंगे तो वो है वेलनेस इंडस्ट्री, जहां पर बीमार ना पड़ने जैसे क्या विकल्प हैं हमारे पास. सो वी एक्चुअली explore all those possibilities that could be just getting intellectual knowledge about making lifestyle choices, correct lifestyle choices, living with the nature without really distorting the natural phenomenon of human life, and also taking enough nutraceuticals or eating nutrition. तो इसमें we went far steps ahead, मतलब कई steps को आगे लेके we actually introduced genomic wellness. And when we started in 2016-17, many people were very apprehensive. कई सारे लोगों को ऐसा लगा कि ये काफी tough science है, आधा डॉक्टर बनना पड़ता है. So people said, probably you wouldn't have a chance in the business, but actually we proved, and we not only are pioneers, but हम also market leaders in gene-based wellness solutions. तो हमारा मकसद ये है कि जो जेनेटिक्स के बारे में हमको जानकारी है उसको भी हम लोगों तक पहुंचाएं थ्रू विगनेट, विच इज वेलोसिटी इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोमिक्स न्यूट्रिशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग. मैं बार बार कहता हूं, ये SHPL के प्लेटफॉर्म में हो या वेलोसिटी जेनेटिक्स के प्लेटफॉर्म में हो, अगर हम लोग चरित्र इतिहास देखेंगे या हिस्ट्री को जाके देखेंगे, ऑल सक्सेसफुल पीपल हैव डन वन थिंग कंसिस्टेंटली. मतलब वो लगातार एक चीज को करते 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 वो फील्ड के बादशाह बने हैं, वो मास्टर बने हैं, एंड ओनली देन पीपल विल गेट सक्सेस. सो यहाँ पर भी हम लोग हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री में जेनोमिक वेलनेस को हम लोग लगातार करते आए हैं. एंड आई एम श्योर आप सभी लोगों को एक ना केवल जेनेटिक्स और न्यूट्रिशन के बारे में जानकारी देना है इस माध्यम के थ्रू, बट वी ऑल्सो क्रिएट एंड प्रोवाइड एन एंटरप्रेन्योरशिप एक अपॉर्चुनिटी. तो ये दिस इज व्हाट वेलोसिटी जेनेटिक्स इज. हमारी फिलॉसफी है फेम मतलब काफी फेमस होना. तो फेम इज, किसको नहीं चाहिए फेम, सबको चाहिए, लेकिन हमारा फेम का थोड़ा सा व्याख्या या थोड़ा डेफिनेशन अलग है. फूड एज मेडिसिन एवरीडे. जो हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं, आपका आहार या आपका खाना ही आपका औषध हो. अगर ये होगा
आई थिंक इट्स वेरी वेरी नेचुरली दैट यू कैन बी वेरी हेल्दी, एंड आपको जो आर्टिफिशियल केमिकल ओरिएंटेड चीजें आपको करने की जरूरत नहीं है. सो ये किसने कहा है, लेट फूड बी दाई मेडिसिन? मैंने या कोई हमारे कोई लीडर्स ने नहीं है, ये हिपोक्रेटिस ने कहा है, हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन. एंड थॉमस अल्वा एडिसन, इन्होंने ये कहा है कि आगे फ्यूचर में जो डॉक्टर्स जो हैं वो प्रिस्क्रिप्शन नहीं करेंगे, एक व्यक्ति को वो स्टडी करेंगे, उनको क्या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है इसके बारे में वो उनको आगाह करेंगे, उनको नॉलेज देंगे और बताएंगे कि आप सही तरीके का खाना खाओ, सही तरीके की लाइफस्टाइल अपनाओ, तब जाके आप ठीक होंगे, स्वस्थ रहोगे. ना केवल मतलब ना कि वो ये बोलेंगे कि भाई आपको ये कैप्सूल चाहिए, ये टैबलेट्स चाहिए, मेडिसिन चाहिए, सर्जरी चाहिए या हॉस्पिटलाइजेशन चाहिए, जरूरत नहीं है. सो होलिस्टिक वेलबींग इसको कहते हैं. सो दिस इज अ फिलॉसफी. अब कई बार हम लोग जेनेटिक्स की बात करते हैं, लोग ये बोलते हैं कि भाई आज तो बीमारियां जेनेटिक्स की कम आती हैं, लाइफस्टाइल की ज्यादा आती हैं. और ऑफ कोर्स जो ओबेसिटी जो है वो भी एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, लेकिन इसको गहराई से अगर समझेंगे, आपकी लाइफस्टाइल also has a very very strong and direct correlation with your genetics as well. क्यों? क्योंकि जेनेटिक रिस्क जो है वो एक गन की तरह है जो लोडेड है और आपके घर पे रखा हुआ है, मान के चलिए, ठीक है. तो इसमें से आपकी जान नहीं चली जाएगी क्योंकि ये एक रिस्क फैक्टर है, क्योंकि एक लोडेड गन है, आपकी जान चली जा सकती है लेकिन गई नहीं अब तक. लेकिन जान तब चली जाएगी तब आपके लाइफस्टाइल जो है वो एक ट्रिगर की तरह काम करता है. मतलब आपके जो जेनेटिक रिस्क फैक्टर्स हैं उसमें अगर आपने ट्रिगर कर दिया, मान के चलिए कि अगर कोई एक बम रखा हुआ है और उसके ऊपर अगर मैंने पैर रख दिया तभी जाके वो विस्फोट होगा और मेरा नाश होगा, विनाश होगा. तो सेम वे अगर मुझे कहाँ पे बम रखा हुआ है पता है और मैं उसको सावधानी से उसके ऊपर पैर ना रखते हुए अगर मैं चले जाऊं तो बम रहेगा वहीं, कहीं डिस्पोज हो जाएगा या कोई रिस्क फैक्टर रहेगी, लेकिन मेरी जान नहीं चली जाती है. तो सेम वे हमारा जो लाइफस्टाइल जो है उसको भी हम लोग ये जान के कि हमारे शरीर में कहाँ कहाँ लैंडमाइंस या बम्स हैं जिससे मुझे रिस्क फैक्टर हो सकता है, और उससे बच के जीने का अगर हमको तरीका पता होगा और उसको हम लोग आर्ट को मास्टर कर सकते हैं तो जेनेटिक रिस्क को भी हम लोग मिटिगेट कर सकते हैं या उसको हम लोग निवार सकते हैं. जैसे अगर समझ लीजिए जेनेटिक्स को हम लोग चेक करते हैं, हमारा डीएनए टेस्टिंग करते हैं, सीक्वेंसिंग प्रोफाइलिंग करते हैं, तो इसमें हमको क्या पता चल जाता है, डीएनए सीक्वेंस के वेरिएशंस पता चलते हैं कि कहाँ पे म्यूटेशंस हैं, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स हैं. तो इसमें हम लोग जीन रेगुलेशन का आर्ट हम लोग पता कर सकते हैं. सेम वे जो लाइफस्टाइल जो बोलते हैं वो एनवायरनमेंट से आता है, हमारे परिसर से आता है. जो अपना न्यूट्रिशन की बात हो, जिस तरीके का पानी हम लोग पीते हैं, जिस तरीके का हवा का सेवन करते हैं, पोल्यूशन है या नहीं है, या हमारे जो स्लीपिंग पैटर्न्स है, हमारा स्ट्रेस लेवल्स है, हमारे फिजिकल एक्टिविटीज की बात है, हमारे मेडिकेशंस की बात है, ये सभी जो एनवायरमेंटल फैक्टर है, इससे कोई जेनेटिक्स से कोई लेना देना नहीं है. लेकिन ये भी आपके एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन से, मतलब जेनेटिक्स नहीं है, एपी मतलब जेनेटिक्स से ऊपर. तो जेनेटिक्स के बाहर, जेनेटिक्स के ऊपर जो चीजें हैं, जैसे कि आप क्या खाना खाते हो, किस तरीके के आपके इनटॉलरेंसेस हैं, ये सभी पता करके किस तरीके के दवाइयां आप लेते हैं, ये सभी के ऊपर भी आपके एपिजेनेटिक्स मॉडिफिकेशंस निर्भर करते हैं. तो इससे भी आप जीन रेगुलेशंस को आप कर सकते हो. तो ये फिनोटाइप जो है, मतलब जो एक्सप्रेस होता है या जो पैरामीटर्स हम लोग ब्लड टेस्ट में बोलते हैं, ये सभी आप एनवायरनमेंट के और जेनेटिक्स के संगम से या उनका क्या संबंध है इसको समझ के आप इसको रेगुलेट कर सकते हो. फॉर एग्जांपल न्यूट्रीजेनेटिक्स एक ऐसा फील्ड है जेनेटिक्स का जहां पर आपके जीन्स किस तरीके से आपने जो भी खाया उसके ऊपर रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, ये बताने का एक साइंस है. वेयर एज आपको अगर न्यूट्रीजेनोमिक्स पता है कि कौन से फूड ऐसे हैं जो मेरे जेनेटिक्स के लिए अच्छे हैं, मेरे जीन्स का मेकअप जो है उसके लिए अच्छे हैं, क्योंकि ये तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कि वी आर ऑल यूनिक, हम लोग सब लोग दिखते एक जैसे हैं लेकिन एक समान नहीं है, क्योंकि हमारे जेनेटिक्स में काफी फर्क है. एंड वो 0.1% फर्क ही काफी हमको वेरिएशंस हमारे बॉडी में क्रिएट करता है. तो दोस्तों फूड जो है, आहार जो है, आपका जो खाना है, उसमें जो न्यूट्रिशन है वो आपके जेनेटिक्स के जीन्स को चेंज करने की क्षमता रखता है, उसके एक्सप्रेशन को कंट्रोल करने की क्षमता रखता है. तो इसके लिए आज लोगों का एक डिमांड है कि जो भी आप न्यूट्रिशनल एडवाइस देते हैं वो जेनरिक ना दें, कि भाई जिसको भी मतलब 100 लोग आपके पास क्लाइंट्स आ गए या 100 लोगों के भी सेम न्यूट्रिशन दे दिया
उनका हाइट, वेट, कल्चरल बैकग्राउंड, मेडिकेशन, स्लीपिंग पैटर्न जब बहुत सारे अलग हैं, तो वो एक समान वो काम नहीं करेगा। तो आज डिमांड है कि मुझे अगर देते हैं, इसको बोलते हैं बिस्पोक, या बोलते हैं कि टेलर मेड एडवाइस दीजिए। टेलर क्या करता है, आपका पहले माप लेता है, उसके बाद में आपके कपड़े सिलाता है। ऐसा नहीं कि आपने ट्राई कर दिया तो 98% आपको ठीक ठाक हो गया, आपने पहन लिया, उसके बाद में आपको थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होगा तो बाद में ज्यादा आप पहनते नहीं हैं। तो पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन जो है वो अभी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। तो आज लोग ये बोलते हैं, क्लाइंट्स ऐसे हैं जो हेल्थ कॉन्शियस हैं, लाइफस्टाइल को बहुत अच्छी तरीके से पालन करते हैं, वो ये बोलते हैं कि हमको पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन का प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत है। इसके अलावा जब मेडिसिन की बात करते हैं, न्यूट्रिशन से ही काम नहीं चलता है, क्योंकि हमारा जो आहार है, मतलब जो प्लांट बेस्ड जो दवाइयां, जड़ी बूटियां हैं, वो भी हमारे प्रकृति में है। जिसने भी इस दुनिया को बना लिया उसने वो परफेक्ट बना लिया है, लेकिन हम लोगों ने इसका बैलेंस तोड़ दिया है। सो दैट इज व्हाई वी आर लुकिंग एट ग्लोबल वार्मिंग, जो भी एनवायरमेंटल के जो अनसीजनल रेन्स या जो भी होते हैं, इट्स बिकॉज ऑफ द इकोलॉजिकल चेंज। सो मेडिसिन की जब भी बात करते हैं, द ओल्डेस्ट मेडिसिनल प्रैक्टिस इज आयुर्वेदा। और आयुर्वेदा और हमारे जीन्स का भी बहुत जोड़ तोड़ संबंध है, और ये साइंस है कॉल्ड आयुर्जेनोमिक्स। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसके ऊपर काफी जोर दे रहा है कि इसको स्टडी करने के लिए, क्लिनिकल स्टडीज करने के लिए एंड पता करने के लिए। आगे आते हैं कि जो एक्चुअल में एलोपैथिक मेडिसिन हम लोग लेते हैं। अब मान के चलिए कि मैं डायबिटिक पेशेंट हूं, और मान के चलिए ये सभी डायबिटिक पेशेंट है यहाँ पर जो अलग अलग कलर में कर दिए हैं। जब मैंने कोई एक ही दवा ले लिया, जरूरी नहीं है ये सभी लोगों के ऊपर सेम काम करेगा। अब रेड कलर के जो लोग बोलेंगे उनको बहुत सीरियस साइड इफेक्ट्स आते हैं। तो आपने देखा कि एलोपैथिक मेडिसिन से साइड इफेक्ट्स आते हैं। जो येलो कलर में आप देखेंगे तो उनको कोई इफेक्ट ही नहीं है, मतलब वो रेस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है। तो आज फार्मा इंडस्ट्री का ऑडिट रिपोर्ट इंटरनल ये बताता है कि 60% ऑफ द मेडिसिन मोस्ट ऑफ द टाइम डोंट वर्क ऑन पीपल, सिंपली बिकॉज उनका जेनेटिक वेरिएशन है और इसको कंसिडर नहीं करते हैं। लेकिन ये डिजायर्ड रिस्पॉन्स जो है ये बाकी लोगों में मिल रहा है। सो इफ यू सी, मे बी 20% पीपल डोंट रेस्पॉन्ड, 20% लोगों को साइड इफेक्ट्स है। तो आप इसमें कौन से कलर के हो, आपको कैसे पता चलेगा कि अगर आपने दवा ले लिया कि आपको साइड इफेक्ट आएगा, कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कि आपको डिजायर्ड रिजल्ट मिलेगा? दैट्स वेयर जेनेटिक्स प्लेज अ वेरी वेरी वाइटल रोल। तो आज जेनेटिक्स के दुनिया में या हेल्थ केयर सेक्टर में आ गया है डिसरप्शन। ये टेलीकम्युनिकेशन में आया है, कम्युनिकेशन हम बोल सकते हैं कि क्योंकि टेलीफोन्स आए हैं, उसके बाद में स्मार्टफोन्स आए, अभी इंटरनेट आ गया, अभी जूम आ गया, तो आपका चिट्ठी लिखने का, इनलैंड लेटर भेजने का, मनी ऑर्डर भेजने का काम खत्म। सो डिसरप्शन आया हुआ टेक्नोलॉजी में, आपको सीखना पड़ेगा। सो वैसे ही हेल्थ को मैनेजमेंट करने में भी डिसरप्शन आएगा, और ऑलरेडी आ चुका है। जिसको समझेगा वो समझेंगे, नहीं तो लोग बीमारियों का वेट करते रहेंगे और डॉक्टर के पास जाते जाते रहेंगे। तो यहाँ पे है साइंस जेनेटिक्स का, ये बहुत आधुनिक साइंस है। 1990 से लेकर 2003 तक तो इसका आविष्कार ही हुआ, और उसके बाद में जब पता चल गया कि इसके क्या फायदे हैं, तो ये पब्लिक डोमेन में आ गया 2002 के बाद में, सॉरी 2012 के बाद में। एंड उसके बाद में इंडिया में ये 2012 से ऑफ कोर्स है क्लिनिकल जेनेटिक टेस्ट, पर 2016 से न्यूट्रीजेनोमिक्स, मतलब आम आदमी हेल्थ एंड वेलनेस के लिए भी इसको यूज कर सकता है। जितने जल्दी आप सीक्वेंसिंग करेंगे अपना, उतना जल्दी आपको अपने रिस्क फैक्टर्स क्या है पता चलेंगे। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी टीच। तो आप देखेंगे जो टेक्नोलॉजीज बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन का जीनोमिक्स जो है टॉप की 7 मतलब 10 टेक्नोलॉजी में 7वें नंबर पे है। एंड अब क्या ट्रेंड्स आगे चलेंगे हमारे डिस्ट्रप्शन में, तो टेलीमेडिसिन जो है, बिना यू फिजिकली बीइंग प्रेजेंट टू द डॉक्टर, आप सीधा 29% इंपॉर्टेंस इसको है। आप देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज नेक्स्ट एट 20%, और जो हम लोग ब्लॉकचेन की बात करते हैं, इट इज एक्चुअली एट 2% इम्पैक्ट अपना टेक्नोलॉजी में वो करेगा। सो WHO जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन किए हैं, और वो इंडिया में किए हैं। क्यों? कि अभी पता चल गया खास करके लॉकडाउन के बाद में कि ट्रेडिशनल मेडिसिन में भी साइंस है। हो सकता है कि उसका क्लिनिकल स्टडीज नहीं है, लिखा पढ़ी किया नहीं है, तो उसके लिए काफी फंडिंग भी गवर्नमेंट कर रहा है। सो आयुष में भी काफी करोड़ ऑफ रुपीज रिसर्च के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एलोकेट किए हैं लास्ट ईयर के बजट में। सो ये मार्च का रिपोर्ट है आफ्टर दिस। एंड ऑफ कोर्स जो इंडिया में
आयुष का ट्रीटमेंट करने के लिए जो लोग बाहर से आते हैं मेडिकल टूरिज्म में, वेलनेस टूरिज्म में से, उनको एक स्पेशल वीजा कैटेगरी में भी लोगों को यहाँ पे बुलाते हैं। सो इसमें टूरिज्म भी होगा, मेडिकल फील्ड भी बढ़ेगा और एक नेचुरल तरीके से लोगों को ट्रीट करने के लिए। तो आप देख सकते हैं इट्स नॉट जस्ट वन टाइप ऑफ मेडिसिन, पर एक इंटीग्रेटेड मेडिसिन आपको करना पड़ेगा। तो दोस्तों हम क्या कर रहे हैं एट विग्नेट और वेलोसिटी, हम लोग ये लोगों को बता रहे हैं, इंटेलेक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं कि क्योंकि एजुकेशन जहां है वहां पे नॉलेज है, एंड दैट्स द मोस्ट पावरफुल वेपन। अंधों के मतलब नगरी में सब लोग राजा होते हैं, लेकिन अगर जितनी नॉलेज हमको है, आई थिंक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस हम लोग ले सकते हैं हमारे हेल्थ के बारे में, हमारे न्यूट्रिशन के बारे में, हमारे लाइफस्टाइल के बारे में। तो हमारा विग्नेट में मकसद है कि वी वांट टू क्रिएट मोर एंड मोर जीनोमिक वेलनेस प्रोफेशनल्स, जो वेलनेस की डेफिनेटली बात करें, लेकिन एट द सेम टाइम जेनेटिक्स के पर्सपेक्टिव में वो इसको देखें, क्योंकि एक ही वेलनेस के नुस्खा जो है या जो भी एक सॉल्यूशंस आप देंगे, इट्स नीड नॉट नेसेसरीली बी वैलिड फॉर एवरीबॉडी। तो न्यूट्रिशन की भी जब बात आती है, एक प्रोडक्ट सबको रिजल्ट्स नहीं देता है, क्योंकि उनके जेनेटिक वेरिएशंस हैं। तो आपको जेनेटिक वेरिएशन से उनको पता करना पड़ेगा कि उनकी डिफिशियंसी क्या है न्यूट्रिशनल की, उनकी फूड इंटॉलरेंसेस क्या है, उनका जेनेटिक मेकअप में क्या रिस्क फैक्टर्स हैं अलग अलग डिसीज के लिए। तो ये सब पूरा साइंस को हम लोग आम भाषा में लोगों को समझा देते हैं। तो इसमें जो बेसिक इंग्लिश समझने वाले आप सभी लोग इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। एंड द बेस्ट थिंग इज हम लोग ना केवल एजुकेशन देते हैं, जैसे डॉक्टर उषा नायर ने बता दिया, शी इज अ वाइस प्रेसिडेंट फॉर कॉर्पोरेट अलायंस एट वेलोसिटी जेनेटिक्स। तो उन्होंने पिछले 5 साल में हम लोगों ने जो भी लोगों को जेनेटिक सीक्वेंस करके उनको जो जो फायदे हुए हैं उसका उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन किया है। बहुत सारे रियल लाइफ स्टोरीज फोटोग्राफ के साथ उनके वहां पर अवेलेबल हैं, और ये बुक बहुत जल्दी रिलीज होने वाला है। एक बड़ा पब्लिशर इसको प्रिंट कर रहे हैं अभी, एंड आई बीन फॉर्चुनेट इनफ, इसका प्रस्तावन या फॉरवर्ड मैंने लिखा हुआ है, और काफी कुछ हम लोगों ने जेनेटिक्स के बारे में भी लिखा है। एंड देन आई वुड लाइक टू रियली एक्नॉलेज एंड अप्रिशिएट डॉक्टर उषा नायर फॉर हर इनिशिएटिव। सो हम लोगों ने नेशनल वर्कशॉप्स किए हैं जो 8 घंटे के होते हैं। जूम में 8 घंटा बैठना काफी चैलेंजिंग है, लेकिन हम लोगों ने ये 2 दिन के लिए सैटरडे एंड फ्राइडे एंड सैटरडे को किए हैं। देन उसमें काफी लोगों को नॉलेज मिली है। एंड देन वी हैड एक्सपर्ट्स, हमारे मेडिकल एडवाइजरी बोर्ड मेंबर, जेनेटिक एक्सपर्ट्स इस सिंपोजियम में आके लोगों को उन्होंने बता दिया है। सो दोस्तों आज हम लोग बात कर रहे हैं विग्नेट की। विग्नेट क्या है, कई सारे लोग पूछते हैं कि विग्नेट है वेलोसिटी इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स, न्यूट्रिशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग। मतलब जेनेटिक्स के संबंधित जो भी आप कमर्शियल एक्टिविटीज करते हैं, वो जीनोमैक्स हो या जेनेटिक्स वेलोसिटी जेनेटिक्स डीएनए टेस्टिंग प्रोग्राम हो, इस सभी को समझने के लिए। तो ये एक 2 महीने का ऑनलाइन कोर्स है, और इसको हम लोग बोलते हैं सर्टिफिकेशन कोर्स इन न्यूट्रीजेनोमिक्स। ये CCNG ये वर्ड काफी पॉपुलर हो चुका है। तो यहाँ पर आप 1, 2, 3 कदम आगे बढ़ के एक प्रोफेशनल के तरीके से आप अपने आप को पेश कर सकते हो, बिकॉज ये सीरियस लोगों के लिए ही है। और अगर आप सीरियस है अपने करियर को लेके, अपने हेल्थ को लेके, अपने परिवार के हेल्थ को लेके, ये एक कोर्स आप करेंगे तो आपको काफी इसमें फायदा मिल सकते हैं। तो अक्टूबर 22 का बैच, मतलब ये साल का अक्टूबर 2022 का बैच स्टार्ट होगा 1 अक्टूबर को, और 30 सितंबर तक आप इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसमें ऑनलाइन कोर्स, ये ऑनलाइन कोर्स में 50 चैप्टर्स हैं जिसको आपको पढ़ना पड़ेगा, करीबन 200 छोटे छोटे वीडियोस देखना पड़ेगा। उसके बाद में आपको क्वेश्चंस आंसर करना पड़ेगा। आपको काफी टफ लगता रहेगा, बट देन इट्स क्वाइट एंजॉयबल, आपको मजा आ जाएगा। एंड 16 घंटों का ऑनलाइन क्लासेस है, मतलब 2 घंटे इंटू 8 वीक्स, 8 शनिवार को, मतलब 16 घंटे का ट्रेनिंग प्रोग्राम से वो 16 घंटे के 20 घंटे भी हो जाते हैं, क्योंकि 2 घंटे का क्लासेस इतने इंटरेस्टिंग रहते हैं कि वो 2, 2.5 घंटे, 3 घंटे भी कभी कभी जाते हैं। सो ये हमारे फैकल्टी है, हम लोग इसमें रूटीन रोटेशन पॉलिसी लेके हम लोग इसको सिखाते हैं। सो इस बैच में वी विल हैव रिद्धि, वी मे हैव लवीना कार्डोजा एंड माई सेल्फ टीचिंग। तो ये हम लोग पढ़ाते हैं। और तो दोस्तों मुझे ये बताना है इस शुरुआती प्रस्तावन में कि द फ्यूचर इज नॉट जस्ट वेलनेस, इट इज जेनोमिक वेलनेस, जीन बेस्ड वेलनेस। क्योंकि आप बोलते हैं ना, अंधेरे में गोली नहीं लगा सकते, यू हैव टू बी एक्यूरेट। तो आपको निशाने पे लगना है तो आपको एक्यूरेसी होना जरूरी है। सो व्हाट डू वी डू एट विग्नेट इज दैट वी सर्टिफाई पीपल, उनको काफी रिगरस ट्रेनिंग दिया जाता है। एंड जो भी उनका 2 महीने का कोर्स होने के बाद में वी हैव ऑनलाइन एग्जाम सिस्टम। तो उसमें वो जब आप स्टूडेंट होंगे तो आपको पता चल जाएगा। इट्स वेरी इजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग। तो उसमें अगर हमारे थोड़े बेंचमार्क्स थोड़े बहुत हाई हैं, तो अगर आपने 60% से ऊपर स्कोर किया, देन यू विल बी क्लासिफाइड एज अ फर्स्ट क्लास पास स्टूडेंट।
डिस्टिंक्शन के लिए हमारे काफी थोड़े हाई बेंचमार्क्स है, 90% के ऊपर अगर मिल जाएंगे तो देन यू विल बी कॉल्ड अ डिस्टिंक्शन स्टूडेंट। आपने मतलब बाजी मारी है, बट देन द रियल क्रीम इज विद द रैंक होल्डर्स। तो 90% एंड अबव जो अगर आप मार्क्स हासिल करते हैं, देन यू विल बी कॉल्ड द रैंक होल्डर्स। एंड द गुड न्यूज इज ये बैच में, बैच नंबर 9 में वी हैड 24 स्टूडेंट्स, एंड 24 स्टूडेंट्स ने 4 स्टूडेंट को हम लोगों ने सर्टिफाई नहीं किया है, क्योंकि जो क्राइटेरिया है उन्होंने फॉलो नहीं किया है, तो उनको हम लोगों ने अगले बैच के लिए रखा हुआ है। सो वी हैव 20 स्टूडेंट्स दैट आर बीइंग सर्टिफाइड टुडे, और उसमें से 13 स्टूडेंट्स आर रैंक होल्डर्स, मतलब टॉप 10 इज शेयर्ड बाय 13 रैंक होल्डर्स, एंड वी हैव 1 स्टूडेंट हु इज अ डिस्टिंक्शन। सो 14 है, बाकी 6 लोग हैं वो पास हुए हैं। तो यू विल सी द रिजल्ट एट द एंड। सो आज उनको हमारा टाइम है कि उनको कांग्रेचुलेट करने का, कि उन्होंने इनिशिएटिव ले लिया एंड देन दे केम टुगेदर टू स्टडी दिस, तो उनको हम लोग कांग्रेचुलेट करते हैं। सो with this I would like to end my initial introduction. So I take this opportunity, of course Dr. Usha is around, but of course she is also with another event. So we have today with us a very very eminent personality जो हमारे साथ हैं, and he is one of the medical advisory board members. He is basically from Nagpur, and just to give a little basic information, formal information, he is an internationally acclaimed holistic homeopathic physician, speaker, trainer and health transformation coach है। with उनका अप्रोच अलग है, ये मामूली डॉक्टर नहीं है, he is a doctor with a difference. His philosophy is patient first, and he is an ex-lecturer, Department of Organon and Medicine and Homeopathic Philosophy, Nagpur College of Homeopathy and Biochemistry, Nagpur. And he is also practicing as a consulting scientific homeopath and family physician since 1996. मान के चलिए almost 26-27 years का उनका तजुर्बा है, and he is internationally acclaimed as a speaker and trainer in homeopathy. He has been a speaker at various events, workshops and seminars. 4-5 साल पहले मैंने उनका full day workshop attend किया था, and at the end I interacted with him. हमारा काफी vision मिलता रहा, and then we teamed up together कि लोगों तक हम लोग ये knowledge को लेके जाएंगे. He is a certified and experienced doctor in psychotherapy and counseling, and specialized, उनका specialization देखिए, treating genetic, incurable, hopeless and critical diseases with knowledge of all useful modalities of treatment. तो एक integrated approach उनका है. So with a round of applause, I would like to now invite on the screen our medical advisory board member and a person who has been known across India as a transformational doctor, Dr. Ravi Vairagade. So Dr. Ravi, warm welcome to you, and thank you for accepting my request to be one of the guests of honor. And your support has been fantastic over the years. I look forward to work with you in closely as well. So please enlighten us कि वेलोसिटी का काम, जेनेटिक्स का काम एंड जीनोमैक्स के जरिए जो हम लोग SHPL में जो काम कर रहे हैं, उसके लिए आपके विचार क्या है? First of all, I will love to thank each and every one of you. See, you are doing a phenomenal job. If you ask me what kind of work this genomic wellness is, let me tell you, you are actually studying the future in the present. So that's so amazing. So thank you to each of the participants here and every member of Velocity, and especially thanks to my dear friend Stan and CMD of Velocity Genetics for creating such a fabulous family. It is a family of genomic wellness. It is a family who understands genomics is. See, working in the field of genetics, I can vouch for this that it was very, very challenging 15 to 20 years back. I very easily remember some 20 years back, I was in Delhi for a seminar about genomics. And they were going to talk about the oncology, oncogenes and oncology. So what I'm going to tell you a very nice, simple and a very short story, which you are going to love and you are going to also appreciate the way you are doing. सर थोड़ा हिंदी में भी बोलेंगे तो अच्छा रहेगा, दोनों मिक्स करेंगे. ओके, चला हिंदी में बोलते, कोई प्रॉब्लम नहीं, हिंदी में बोलना चाहिए, ऑब्वियसली, सॉरी. तो मैं दिल्ली के एक सेमिनार में गया था, वहां का टॉपिक था बेसिकली जीन्स. वहां का टॉपिक था जीन्स, की जीन्स के बारे में बात करेंगे और स्पेसिफिकली कैंसर के बारे में. 2 दिन का वर्कशॉप था और पूरा 2 दिन का वर्कशॉप अटेंड करने के बाद देयर वाज अ पैनल डिस्कशन, और मैंने वहां पर एक सिंपल सा सवाल पूछा कि सर इतना सारा जो हमने जेनेमिक स्टडी किया है,
they were studying about the oncogene and different type of oncogene available and different type of test available. ये सब स्टडी करने के बाद जो सिंपल मैंने सवाल पूछा कि सर ये सारा जो स्टडी है इस ये करने में कितना खर्चा आएगा, मतलब जो भी पेशेंट होता है ऑब्वियसली ही विल बी पेइंग समथिंग राइट, तो मतलब कितना खर्चा आएगा, तो बोले अप्रोक्सीमेटली इट गोज टू, अगर हम इंडिया की बात करें, इंडियन करेंसी में बात करें, इट गोज टू समवेयर अराउंड 5 लाख। तो मतलब फाइन, वहाँ यूके के सब लोग थे, यूके यूएस जर्मनी से थे, तो इंडियन करेंसी में इट इज 5 लाख, एक इंडियन साइंटिस्ट ने आंसर दिया। मैंने बोला ये 5 लाख एक्सपेंस करने के बाद थेराप्यूटिक लेवल पर, इलाज के लेवल पर एग्जैक्टली क्या फायदा होगा एट प्रेजेंट। बोले नहीं सर इसका थेराप्यूटिक लेवल पे फिलहाल कोई फायदा नहीं होगा, इट इज अंडर द स्टेज ऑफ रिसर्च, और हमें सब जांच जब करवाएंगे तो हमें एक अंदाजा आएगा कि हम आगे क्या कर सकते हैं। मतलब मैंने कहा कि आगे क्या कर सकते हैं, मतलब बोले और क्या जांच कर सकते हैं। सो फाइनली द कंक्लूजन वाज कि ट्रीटमेंट में उसका कोई फायदा नहीं होने वाला एज ऑफ नाउ। इट वाज सो स्ट्रेंज। और सोचिए आप अब जो कर रहे हैं वो कंप्लीटली डिफरेंट लेवल का है, एंड दिस इज नॉट जेनेटिक्स, इट इज मोर ऑफ जीनोमिक्स। अब जीनोमिक्स, जेनेटिक्स, एपीजेनेटिक्स, बाप रे बड़ा कंफ्यूजिंग है, बट आई विल सिंप्लीफाई, क्योंकि मैं 27 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और एपीजेनेटिक्स एंड जीनोमिक्स इसी लेवल पर प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो मैं आपके लिए एक छोटा सा एक डिफरेंशिएशन क्रिएट करना चाहूंगा। देखिए जीनोमिक्स एक बहुत ही यूनिक काइंड ऑफ साइंस है। अगर हम कंपेयर करें जेनेटिक्स के साथ, तो लोग जब शुरू हुआ, एक 15 से 20 साल पहले शुरू हुआ था जीन एडिटिंग। मतलब कंसेप्ट ये था कि कोई भी बीमारी हो, चलो डायबिटीज है, उसका जीन ढूंढेंगे, उसे एडिटिंग कर देंगे, एंड वाओ पेशेंट डायबिटीज से फ्री हो गया। या फिर कैंसर है, उसका जीन ढूंढेंगे, उसे एडिटिंग करेंगे, एंड ग्रेट पेशेंट इज फ्री ऑफ कैंसर। अब ये इतना आसान लग रहा था उससे जब शुरुआत हुई, बट जब उन्होंने कैंसर का जीन ढूंढा या डायबिटीज का जीन ढूंढा, उन्हें पता चला कि उस जीन के साथ वो एडिटिंग करने के बाद बीमारी जो की त्यों है। उसके बाद पता चला कि दूसरा भी जीन है, फिर तीसरा जीन है, फिर पता चला 50 जीन मिल चुके हैं, अब पता चला 100 जीन मिल चुके हैं। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये नहीं है कि 100 जीन मिल चुके हैं, उससे भी बड़ा प्रॉब्लम ये है कि और कई शायद पता नहीं हजारों लाखों करोड़ों जीन, वो ट्रिलियंस ऑफ जीन्स के माया जाल में छुपे हुए। अनफॉर्चुनेटली वो वर्क नहीं कर रहा। तो अब ध्यान गया लोगों का जेनोमिक्स की तरफ, एंड जीनोमिक्स एंड एपीजेनेटिक्स दोनों बहुत क्लोज जाते हैं। तो जेनोमिक्स में साइकोजेनोमिक्स, न्यूरोजेनोमिक्स, सोशल जेनोमिक्स, न्यूट्रीजेनोमिक्स, बहुत सारे वेरिएशंस है। बट पर्सनली द मोस्ट इफेक्टिव टूल विच समबडी कैन यूज इज न्यूट्रीजेनोमिक्स, क्योंकि न्यूट्रीजेनोमिक्स ऐसी चीज है जो आप रोजमर्रा के लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हो। इट इज वेरी इजी, एवरीबडी इज गोइंग टू ईट, हर कोई खाना तो खाने वाला है, कुछ ना कुछ तो खाने वाला है, कुछ ना कुछ तो कंज्यूम करने वाला है। और आजकल सप्लीमेंट्स भी इतने तरह के लोग लेते हैं। सो बस आपको तो इतना आसान काम है, थोड़ा सा रिप्लेस करना है और उसे काउंसिल करना है कि आप जो खाओगे वो बनोगे। तो कुछ भी मत खाओ ना, क्योंकि कुछ भी खाओगे तो कुछ भी बनोगे, है ना। प्रॉपर खाओगे तो प्रॉपर बनोगे। सो दैट इज न्यूट्रीजेनोमिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। एंड वी आर, लेट मी टेल यू, आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू हैव अ फ्रेंड लाइक स्टैन। बहुत बार स्टैन के साथ बात हुई, मुलाकात हुई, आई वाज देयर इन इवेंट्स टू। और जब मैंने देखा कि द लेवल ऑफ वर्क यू आर पुटिंग इन एंड द लेवल ऑफ ट्रेनिंग्स यू आर गोइंग थ्रू, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इससे जब भी मैं वेलोसिटी में आता हूँ, शायद मेरी एनर्जी थोड़ा सा ज्यादा ही हो जाती है, मतलब ऐसा मुझे फील होता है। आई डोंट नो आपको क्या फील होता है, बट मेरी एनर्जी तो डेफिनेटली बढ़ जाती है। तो अगर हम देखते हैं हेल्थ केयर, सो हेल्थ केयर मेरे ख्याल से एक ऐसा फील्ड है जहां पर कभी भी रिसेशन नहीं आने वाला। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विथ मी? मतलब मैं चाहूंगा कि एग्री लिखिए आप चैट विंडो में, अगर आप एग्री करते हैं कि हेल्थ केयर में रिसेशन नहीं आने वाला। आप चाहे दूसरा कोई भी बिजनेस कर लीजिए। देखिए इंडिया में पॉपुलेशन ही इतनी है और बीमारियां इतनी है और वो बढ़ती ही जा रही है, और पता नहीं नई नई बीमारियां क्या क्या आती जाएगी। सो हेल्थ केयर का तो रिसेशन का सवाल ही नहीं उठता। यस, सो एवरीबडी एग्रीज। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहूंगा, हेल्थ केयर में दो पार्ट हो चुके हैं। एक है प्राइमरीली मेडिकल हेल्थ केयर, दूसरा आया है वेलनेस। अभी साहब हेल्थ एंड वेलनेस कहिए, एंड इट इज अ ह्यूज सेगमेंट। तो वेलनेस का एक बहुत बड़ा मार्केट है। अगर स्टडी किया जाए, आई वाज प्रिपेयरिंग अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर सम ऑफ माय
प्रोजेक्ट, तो उसमें पता चला कि $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री है वेलनेस इंडस्ट्री, और उसमें भी सबसे ज्यादा डिमांड है वेलनेस कंसल्टेंट। अब हम देखेंगे वेलनेस कंसल्टेंट तो मेरे ख्याल से बहुत सारे हैं, ऑलमोस्ट एवरीबडी जो भी डॉक्टर नहीं है और हेल्थ केयर में काम कर रहा है, somehow he labels him as a wellness consultant. But then I'm seeing that you all are differentiating yourself scientifically. ये बहुत बड़ा पावरफुल चीज आप कर रहे हो, क्योंकि आप एक तो जीनोमिक वेलनेस कंसल्टेंट बन रहे हो। यहाँ जितने भी लोग हैं, मैं जस्ट सुन रहा था स्टैंड से कि यू आर द अमेजिंग परफॉर्मेंस, जो स्टूडेंट्स है उन्होंने कैसे परफॉर्म किया, एंड द रिगरस, वो लोग जितना रिगरस पैरामीटर से जज करते हैं आपको, आई एम श्योर आपको इसके लिए क्वालिफाई होने में, पास होने में मेहनत करनी पड़ी होगी। बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बिना बिना मेहनत किए आप उतने शानदार कंसल्टेंट बने भी नहीं होते। तो देखिए, एक तो आप उस 1.5 ट्रिलियन इंडस्ट्री के हिस्से में हो आप, और उसमें भी आप जनरल वेलनेस कंसल्टेंट नहीं। सो लेट मी टेल यू, बस इतना बोलते समय मुझे ऐसा लग रहा है कि आई शुड से आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, बिकॉज यू सेलेक्टेड दिस सेगमेंट जीनोमिक वेलनेस कंसल्टेंट, क्योंकि आपने बहुत सारे डिफरेंट काम किए इसमें। एक पहला काम ये किया कि जो जरूरत है लोगों को जीनोमिक वेलनेस के लेवल पर ट्रीटमेंट को पर्सनलाइज करने में आप हेल्प कर रहे हो। दूसरा, देखिए जनरल हेल्थ केयर बहुत हो चुका, हमने देखा जो हमारे द कॉमेडियन थे, द ग्रेट कॉमेडियन, अब जान के हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि आप समझिए इसके पार, इन्होंने 6 बार इन्होंने स्टेंट लगवाया था हार्ट में। अब जस्ट इमेजिन कीजिए कि यू कुड हैव मेड अ ह्यूज डिफरेंस। यस, ईच वन ऑफ यू कुड हैव मेड अ ह्यूज डिफरेंस, क्योंकि 1 स्टेंट, 2 स्टेंट, 3 स्टेंट, 4 स्टेंट, बट उसके बाद ये भी तो पता होना जरूरी था ना कि ये बार बार स्टेंट की जरूरत क्यों पड़ रही है। तो जेनरिक इलाज करने में और पर्सनलाइज इलाज करने में जमीन आसमान से भी ज्यादा फर्क है, और शायद वहां कोई जीनोमिक कंसल्टेंट इन्वॉल्व हो जाता, एंड अगर आप उनका प्रॉपरली टेस्ट कर लेते तो शायद आपको पता चलता कि ये बार बार जो ब्लॉकेजेस आ रहे हैं इसके लिए कोई ना कोई रीजन है। प्रोबेबली रीजन डाइट में है, बिल्कुल हो सकता था, एंड आप अगर उस रीजन को पॉइंट आउट कर लेते एंड उसे रिमूव कर देते, शायद कुछ एडिशन करना पड़ता, सो एग्जैक्ट स्पेसिफिक आपको कॉज मिल जाता। देखिए कितना बड़ा डिफरेंस हो जाता। एक सिर्फ लाइफ नहीं, हम कई हजारों लोगों की हंसी और खुशी को बचा सकते थे। सो दैट इज द पावर ऑफ जीनोमिक वेलनेस। आई एम वेरी हैप्पी कि आप इतना शानदार कार्य कर रहे हो। सो जितने भी लोग यहाँ पर ऑलरेडी ज्वाइंड है, ऑलरेडी एज ए स्टूडेंट है, आपने मेहनत करी है और आप सफलता पा चुके हो, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके साथ ही जितने भी आज एक्सपर्ट्स यहाँ पर अवेलेबल है, सो आई एम सुपर हैप्पी दैट यू ऑल आर देयर विद दिस टीम। सो वंस अगेन एक बार वेलोसिटी की सारी कम्युनिटी को मैं तहे दिल से धन्यवाद कहता हूँ, और वेलोसिटी की पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि इतना शानदार एक कम्युनिटी बनाई है आप लोगों ने, इतनी शानदार फैमिली बनाई है, और भविष्य को देखते हुए मुझे लगता है कि ये जितने भी लोग यहाँ पर है, इस फैमिली में है, ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस करने वाले हैं। एंड स्टैन एंड टीम, मैं हमेशा चाहूंगा कि आप लोगों के साथ कुछ काम करने का मौका मिले। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। अगर आपको कभी भी लगता है कि कभी मेरी जरूरत पड़ती है और किसी भी तरह से मेरी हेल्प हो सकती है, सो आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। सो इसी के साथ मैं अपने 2 शब्द समाप्त करना चाहूंगा। थैंक यू स्टैन, थैंक यू टीम। Thank you, Dr. Ravi Vairagade. It's I know your schedule, but in spite of your busy schedule, आपने हमारे लिए मौका दे दिया कि आपको हम सुने, and I really acknowledge your commitment कि आप साथ में हमारे काम करेंगे, and of course that's a commitment that we have made, तो ये definitely सिलसिला जारी रहेगा. So thank you very much. I request everyone of you to just acknowledge Dr. Ravi Vairagade through chat box, या अपना हाथ रेस करें या हाथ वेविंग करके हम थैंक यू कहें, बिकॉज ही इज अ वेरी रिनाउंड डॉक्टर। उनका प्रोफाइल आप देखेंगे, सो इट्स बीन रियली एन ऑनर टू हैव हिम विद अस। सो थैंक यू डॉक्टर रवि वैरागडे। वी आल्सो हैव अनदर, थैंक यू सर, thank you sir. We also have at this occasion a very young researcher and scientist of genetics,
He's a good friend of mine. I had the fortune of meeting him, and उनके साथ मेरा काफी discussion हुआ था regarding how we can work together and take this mission ahead. So I'd like to now also welcome the person who is basically from Kerala, but then he's been doing a fantastic work. काफी उन्होंने articles लिखे हैं. So Dr. Asif from Kerala. So I would like to invite you to say a few words at this occasion. So Dr. Asif, over to you. Okay, thank you very much for inviting me for this ceremony. So you people are very happy because you got an opportunity to explore genomics from a big institute, that is Vignet Velocity Institute of Genomics, Nutrition and Entrepreneurship Training. I'm assured that this is one of the pioneer and the leading institute in India who are doing professional training in genomics plus entrepreneurship. So this will be helpful for you people to make a good career in the field of genomics. So moreover, Mr. Shan is the pillar wall of the genomics wellness industry in India and who is leading from last 10 years upfront in India. So regarding genomics, hereafter without genomics, people can't survive. Now everybody is talking about genomics. What is genomics? If you are suppose our bodies consist of lot of cells. Inside our cell, chromosome is there. Inside chromosome, nucleus is there. The nucleus is made up of adenine, thymine, guanine, and cytosine. These are the building blocks. So suppose if you are going to any electrical shop or any supermarket, or you are purchasing any material, you will get some manuals. So here our DNA is our instruction manual. So here we are getting an opportunity to understand what is inside our body. Different things we can explore. Mr. Shan and other faculty told many things about nutrigenomics. Now we are getting a lot of things in talent genomics. By using the DNA, by using the instruction manual, we are getting what is our inborn talent of their kids. Suppose in India, a lot of unemployment problem is there. So because people don't know which career is suitable for them. So here, by using the scope of genomics, we can tell what career is suitable for them, what personality is there, what is their mathematical capacity, how the personality of that individual, whether is agreeable, whether is doing some aggressive things. By using these things, we can give a good head start. We can make a good parental relationship. We can give a happiest parents relationship, and we can save a lot of money during the case of their career and also. And second one is nutrigenomics, which food is suitable for our body, that we already told. And third one is we are discussing about the genetics as developed in a way, means everybody is thinking about aging. So they are fearing about aging. So now a lot of international scientists in the field of genomics has developed a lot of tests to prevent aging. For prevent aging, you should know what is the reason of age. Aging is because of the collagen protein. So by taking the genetic data, we can tell what is the genetic risk of getting the collagen breakdown, what is the risk of getting a glycation, wrinkling, and which antioxidant you should take. Like that, from food intolerance to the celebrity level, this genomics is expanded now. So hereafter, life without genomics is very difficult. So what I'm telling, I'm suggesting you now the present strategy in medical is, if you are getting any disease, we are going to approach the doctor. Doctor will give some prescribe some medicine and all. Now hereafter, we are predicting and we are fixing the disease. So a new era is coming in genomics. So I am very happy
and my gratitude to invite this function. Thank you, sir. Thank you, Dr. Asif. You've been fantastic in explaining what is the importance of genetics. कि आगे जाके genetics की क्या अहमियत है एक साइंटिस्ट के जरिए. इन्होंने PhD किया हुआ है जेनेटिक साइंस के, उसके ऊपर वो उनका करियर बिल्ड कर रहे हैं एंड उनके साथ काफी डिस्कशन करने का मौका मिल रहा है. तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर आसिफ. डॉक्टर आसिफ केरला से हैं तो हिंदी में नहीं बात कर सकते हैं, जैसे आप इंग्लिश में कभी कभी समझने के लिए थोड़ा तकलीफ हो जाती है. तो दैट्स द ब्यूटी ऑफ इंडिया कि हम लोग सब वी आर यूनाइटेड इन डाइवर्सिटी. वी ऑल्सो हैव अनदर स्पेशल गेस्ट एंड आईड लाइक टू नाउ आस्क डॉक्टर उषा, एंड उसके बाद में उनका मैसेज के बाद में हमारे स्टूडेंट के पास जाएंगे. स्टूडेंट के मुंह से सुन लेंगे कि उनका क्या एक्सपीरियंस रहा इस बैच में स्टडी करते हुए, कैसा लगा, क्या टीचर ने डांट पड़ी या प्रिंसिपल ने कुछ पनिशमेंट दिया, सब हम लोग जान लेंगे एंड देन उनके रिजल्ट्स भी जान लेंगे. सो नाउ इट्स ओवर टू डॉक्टर उषा टू इंट्रोड्यूस आवर नेक्स्ट स्पीकर एंड अ वेरी एमिनेंट guest of honor for today evening. So over to Dr. Usha. थैंक यू स्टैन सर. वेल फ्रेंड्स, मुझे बहुत ही गर्व महसूस होता है टू इंट्रोड्यूस अनदर ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड डिग्निटरी टुडे. डॉक्टर अनिल बाजपेयी जी इज एन एल्यूमिनस of three most premier institutes in India, that is St. Stephen's College, Delhi University, IISc Bangalore, where he did his electrical tech and electronics engineering, and he's also done a PG DBM from IIM Ahmedabad. In fact, unka career was not into what he is in today. उनका इंटरेस्ट और क्वालिफिकेशन अलग है, बट आज डॉक्टर बाजपेयी इज द चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर एट प्रेस्टीज एजुकेशन फाउंडेशन. ही इज वाइस चांसलर डेजिग्नेट फॉर द अपकमिंग प्रेस्टीज यूनिवर्सिटी इन इंदौर, दैट इज इन MP, and he is responsible strategy formulation in terms of courses, रिसोर्सेज, बिल्कुल एकदम फेस्ड मैनर में इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी वो करते हैं फॉर द अपकमिंग प्रेस्टीज यूनिवर्सिटी. एंड प्रेस्टीज ग्रुप ने they have contracted with the Boston Consultancy Group to assist in forming alliances for academics and corporate leadership in lot of various programs. So friends, it is with great pleasure I invite Dr. Anil Bajpai. उनके लिए भी साइंस ऑफ न्यूट्रीजेनोमिक्स इज समथिंग न्यू, बट उनके व्यूज हम जानना चाहेंगे अभी तक का प्रोग्राम देखने के बाद, बिकॉज फ्यूचर में हम यही चाह रहे हैं कि हम एक कॉर्पोरेट अलायंस करें ताकि हमारे बच्चों को और उनके तरह से बच्चों को हम बहुत अधिक तरीके से पहुंच पाए, बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को ऑफ द राइट एज. ओवर टू यू डॉक्टर बाजपेयी. नमस्कार और धन्यवाद उषा जी. ये मैं पिछले कोई आधे घंटे से जो सुन रहा हूँ स्टैन को, रवि जी को और डॉक्टर बीस को फ्रॉम केरला, ये अपने लिए थोड़ा सा तो जरूर कहेंगे हम कि चक्षु खोलने वाली बात रही है, बट नॉट रियली सो. आई हैव बीन इंटरेस्टेड इन दिस एरिया फॉर अ लॉन्ग टाइम. और मैं ये कहूँगा कि जो डॉक्टर रवि ने कहा कि आज जो एक दुखद समाचार मिला था हमारे कॉमेडियन हास्य कलाकार का निधन का, जो कि इतने स्टेंट्स लगने के बावजूद वो क्यों लगाए उन्होंने, क्यों ना हुआ. यदि वो अपनी लाइफस्टाइल चेंज करते तो शायद ये सब कुछ बदल जाता. यदि वो अपना खान पान चेंज करते तो ये शायद कल सब कुछ बदल जाता. लेकिन ये सब यदि वाली बातें हो जाती हैं, व्हाट इफ वाली बातें हो जाती हैं. मैं एक चीज आपको सबको इस समय, of course it's a very difficult task to talk as the fourth speaker after three stalwarts. मतलब तीन दिग्गजों के बाद में चौथा वक्तव्य व्यक्त करने के लिए बहुत कठिन काम होता है, और वो भी उस समय जब अधिकांश लोग इंतजार कर रहे हैं अपने अपने सर्टिफिकेट और कॉन्वोकेशन के अगले सत्र का. खैर, फिर भी मैं प्रयत्न करूंगा. दो खास इंडस्ट्रीज हैं. एक का नाम है फार्मास्यूटिकल्स और दूसरे का नाम है फास्ट फूड. अब फार्मास्यूटिकल्स और फास्ट फूड इंडस्ट्रीज ने आपस में, अब ये मैं अपने विचार व्यक्त कर रहा हूं जो मेरे पर्सनल हैं, तो कहीं आप कोट ना करें, इन दो इंडस्ट्रीज ने विश्व भर में
हाथ मिला लिया, एक गठबंधन किया और तय कर लिया कि धरती पर से जो 8 अरब इंसान है, इसको किसी को भी स्वस्थ नहीं रहने देंगे। कैसे किया इन्होंने? ये इतनी बड़ी साजिश इन्होंने कैसे मुकम्मल की? बहुत आसान था। इन्होंने हैमबर्गर और फ्रेंच फ्राइज और जाने क्या क्या, पिज्जा बर्गर और पिज्जा, वट एवर लिटिल थिंग दे कुड सेल थ्रू दी थ्रू दी क्या बोलना चाहिए, फास्ट फूड चेन्स, और हम लोगों को प्रलोभन दे दे के हमारे स्वाद को बदल के इन्होंने हमें जहर खिलाया। जहर खिला के हमारा क्या हुआ? हमारा पैनक्रियाज अपना नॉर्मल काम करना बंद कर दिया। पैनक्रियाज यदि नॉर्मल काम करना बंद कर देगा तो हम दौड़ेंगे किसी डायबिटिक के मेटफॉर्मिन और ग्लिमेपाराइड की तरफ। फिर अगर 8 अरब इंसान में से 20%, यानी कि 2 अरब, 2 अरब बहुत बड़ी संख्या होती है, इट्स 1/5 ऑफ ह्यूमैनिटी। 2 अरब इंसान यदि दिन में 100 रुपया, सिर्फ 100 रुपया खर्च करें, एंड दिस इज द एवरेज ओवर अमेरिका, इंडिया, पाकिस्तान, व्हाटएवर कंट्रीज, 100 रुपया दिन का खर्च करते हैं अपनी दवाइयों पे। ये जो एलोपैथिक दवाइयों की बातचीत हम कर रहे हैं, इन दवाइयों पे अगर खर्च करते हैं जो कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बनाती है, तो ये रोजाना का 200 अरब की इंडस्ट्री है। भला ये इंडस्ट्री के मालिक लोग, ये इंडस्ट्री के बड़े नुमाइंदे क्या हमको स्वस्थ रहने देंगे? क्या ये हमको इस इंडस्ट्री को डुबोने का काम करने देंगे? नहीं। एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट अवीश जी, रवि जी, एंड स्टैन, and of course Usha for taking this step forward to make a dent in these two major industries by actually finding the secret sauce to a healthy human being. जो स्वास्थ्य के लिए जो अनिवार्य चीजें हैं वो हैं, जैसा कि आप लोगों ने सबने अभी कहा है ऑलरेडी, कि हमारा दिनचर्या कैसी हो, हमारा खान पान कैसा हो, हमारे रोजाना के समय में बहुत सारी चीजें हैं। यदि हम अपने वेदों को, पुराणों को, उपनिषदों को थोड़ा सा पढ़ें और थोड़ा सा उसमें गूढ़ क्या बोलना चाहिए, अध्ययन करें, तो हमें ये पता चलेगा कि बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे बरसात में मिर्च खानी चाहिए, मिर्च और कहीं भी नहीं खानी चाहिए। टमाटर जिस मौसम में पैदा होता है उसी मौसम में खाना चाहिए। खीरा तब खाओ अब जब खीरा की पैदाइश हो। लेकिन आजकल हमको क्या हो गया है, हम तो नॉन सीजनल खाने के शौकीन हैं। हम तो वो चीजें बाजार में ढूंढते हैं जो उस समय पैदा नहीं होती, और उनको कहां से लाया जाता है? कोल्ड स्टोरेज से। और जब कोल्ड स्टोरेज से लाएंगे तो क्या होगा? अब जो दूसरी बात है, ये तो सब हो गया, आज सवेरे की बात है, एंड दिस इज एब्सोल्युटली द ट्रूथ। मैं इंदौर में था, अभी तो मैं भोपाल में आ गया हूँ। मैं इंदौर में था और एक लेडी थी, वो स्पिरिचुअलिटी पे एक सेशन ले रही थी, विच आई वाज अटेंडिंग। और उस सेशन में उन्होंने लाओ त्से की कुछ फिलॉसफी को डिस्कस किया। और वो फिलॉसफी क्या थी? फिलॉसफी थी कि सोल क्या है, और सोल के बाद हार्ट क्या है। सोल is data and heart is the receiver and mind is the processor and all this kind of stuff. और इस चीज को उन्होंने जब हमें बताया, and I couldn't resist, हमारा तो हम तो रोक दिया उनको। हमने कहा मैडम ये सब चाइनीज चीज आपने अच्छी बताई है, बहुत अच्छा फिलॉसफी है, लेकिन सोल और डीएनए में अंतर क्या है? आप कहते हो सोल इज द डेटा ऑफ ऑल दैट इज अवेलेबल विथ मी। व्हाट इज द डीएनए? द डीएनए molecule contains information of my ancestors and possibly what is going to happen to me and my progeny thereafter. अगर पूरी तरीके से जेनेटिक कोड को क्रैक कर दिया जाए तो ये डाइऑक्सी रूबीज न्यूक्लियस, जो छोटा सा मॉलिक्यूल, डबल हेलिकल जिसको बोलते हैं, ये ऐसी चीज है, इसके अंदर जो छुपा है वो एक बहुत बड़ा ब्रह्मांड का रहस्य है। जैसा कि कृष्ण जी ने अर्जुन को दिखाया था अपना मुंह खोल के कुरुक्षेत्र में। दिस रहस्य is what, and I'm amazed with what Dr. Abish is doing, what Usha is looking at, and Stan, you are absolutely marvelous in
risking your life, I would say, in a field which is uncharted, which nobody has been into before. And congratulations for your ventures. And of course, congratulations to all the passing out young boys and girls, and some of them are not so young. I wholeheartedly congratulate all of you and welcome you to the world of wellness, which let's hope you create a better India, a better world after. Thank you so much for allowing me the opportunity to share my thoughts with you all. Thank you so much, Dr. Anil Bajpai. I think it was fantastic. I never felt that, you're not somebody from genetic background at all. This is all common sense, but I think you presented it in a way that we all need to listen to right now, because jo comedian, every time there is a singer or there is a celebrity dies, the whole nation wakes up in the media just for a week. And after that, life goes on, and you rightly said ki fast food or pharmaceuticals ka सांठ-गांठ चल रहा है. And I heard in one place that dentists, जो जितने भी dentists हैं, they love biscuit companies, companies manufacturing biscuits, because India में तो दांत को घिसना एक ही बार है. We don't brush our teeth every time we have food. So biscuits खाएंगे और दांत को पूरे दिन हम लोग नहीं brush करेंगे तो of course सड़ जाएंगे. Dentist will have a lot of business. So it's all allied businesses. And sometimes it's ethical, sometimes it's not. So that's where we are creating something which is not so common, and we don't follow the usual path that's been tread by people. Hum thoda hatke bolte hain. That's why some of our statements are very radical and very disruptive in nature. So aapne kaha ki बहुत सारे young and students and not so young. We have a lot of young and students at heart. I will now give an opportunity to some people to share. ये बैच के जितने भी students हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको ये बैच में क्या सीखने के लिए मिला, क्या लगा, क्या आपको कुछ लोगों ने अपने हाथ खड़े किए हैं, I think. बिल्कुल. So we'll definitely request them to share. So who would like to go first? So first Reshma ma'am. So Reshma ma'am का sharing हम लोग सुनते हैं. We have a few minutes and after that हम लोग results को announce करने वाले हैं. So anybody who would like to share, आपका feedback देने वाले हैं, तो please just type me and okay, Dr. Rajkumar, you can go. Mr. Rajkumar, you can go and share. Mr. Rajkumar, yes, you can just unmute. Unmute. You're not unmuted. Unmute yourself. Okay, so meanwhile, Reshma ma'am, you can unmute yourself and then speak. Yes. Unmute करें अपने आप को. Yes, ma'am. Yes, sir. बाकी सर बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा हमारा. जैसे जो भी हमें यहाँ पे पढ़ाया, चलो हमें इतनी नॉलेज तो नहीं थी, लेकिन जितनी भी हमें नॉलेज थी उसके पहले भी मैंने मेडिकल फील्ड में ही काम करा है. अनफॉर्चुनेटली चलो इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर जब आए तो हमारे हाथ से छूट गया था फील्ड, लेकिन काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा. लर्निंग के दौरान हमारा जो मैम सिखा रहे थे या स्टैन सर की जो भी लेक्चर्स होते थे या फिर रीना बेलिगा मैडम के जो लेक्चर्स होते थे, उसमें काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा. मजा आया सीखने का. बस इतना ही बोलेंगे. बढ़िया लगा. थैंक यू सो मच. एंड आपका रिजल्ट अभी डेफिनेटली आएगा, तो एक दिन से वेट कर लीजिएगा and we will see your results as well. So next Rajkumar sir, now you are unmuted, so you can speak. Yeah, very good evening to you. And पहले मैं हमारे प्यारे Stan sir, you have some issue with your audio. I think I'll have to just stop you. Just fix it if you can. I'd like to now go to Satish Amritkar sir from Pune, Maharashtra. So Satish sir. Yeah, thank you, Stan sir. First of all, I would like to thank you, Stan sir, then our beloved teachers, रीना बलिगा, रिद्धि शाह, दोनों ने बहुत अच्छी तरह से हमें एनरोल रखा ये सेशन में. जब शुरू किए थे तो पहला तो थोड़ा बाउंसर लगा, बिकॉज एज ए इंजीनियर मुझे लगा ये मैं नया क्या सीख रहा हूँ. न्यूट्रिशनिस्ट था लेकिन समझ में नहीं आ रहा था फिर भी कि ये जीनोमिक्स कंसेप्ट क्या है, क्योंकि बायोलॉजी भूल चुके थे. लेकिन थैंक्स टू द टीचर्स एंड उनके वजह से हम टिके रहे. एंड जो इंटरेक्टिव सेशन हुआ उसके कारण हमें यहाँ बहुत अच्छा लगा. मैं नए फेलो पार्टिसिपेंट्स को बोलना चाहूंगा कि बहुत अच्छा सेशन है, बहुत अच्छा लर्निंग है, और एंड डेफिनेटली ये हम आगे का फ्यूचर जो देख
यही फ्यूचर है, ये हमें विश्वास आ चुका है एंड वी आर एंजॉयिंग इट. Thank you very much. Thank you, Mr. Satish Amritkar. He is from Pune, Maharashtra. So I'd like to now ask Anusha ma'am, you want to say something? Anusha ma'am, बहुत सारे SHPL के स्टाफ हो या IBOs हो, वो भी इस फील्ड में इस कोर्स में शामिल थे. सो वेलनेस उनको जानते हैं, वो जानते ही हैं, लेकिन जेनोमिक वेलनेस के बारे में उन्होंने पढ़ाई की है. Anusha ma'am, your feedback. Yeah, definitely. So I would like first I would like to say that कि हम लोगों को पता था कि स्टूडेंट लाइफ में हम लोग कभी वापस नहीं जा पाएंगे. So it is the opportunity कि हम लोग फिर से स्टूडेंट लाइफ में वापस जा पाए, यानी कि कॉलेज लाइफ एंड स्कूल लाइफ were the golden days, but now also we get that opportunity to go back to that student life. So thanks for that opportunity to especially you, Stan sir. Thanks for this opportunity, for giving us this opportunity. And जैसे कि आपने कहा पहले कि टीचर लोग डाटा नहीं, so definitely not. रिद्धि मैम, रीना मैम, they all were very supportive. तो सबकी तरफ से बहुत सपोर्ट मिला एंड बहुत सारी नई चीज सीखने को मिला है. सो हाँ, जैसे डॉक्टर उषा ने ऑलरेडी सेड इन द बिगनिंग कि हम लोग बहुत सारे लाइव चेंज किए हैं एंड आगे जाके करेंगे. सो डेफिनेटली वी विल डू दैट. इट्स अ रेवोल्यूशन. सो आई एम वेरी प्राउड for being a genomic wellness part of that. So thank you everyone. Thank you, Anusha ma'am. It's a very special day. I know you just wait for some breaking news today. There are some surprises. So I'll now go to Meena Lal from Delhi. She's a very young professional, healthcare professional. So Meena Lal, आपका अनुभव कैसा रहा? The entire experience was amazing, and I was working in a healthcare industry for past 15 years. And I just want to include more information to the patient so that they are well aware. And अगर उनके एक छोटी छोटी चीजों से भी अगर उनके लाइफस्टाइल में चेंज आके अमेजिंग इफेक्ट्स आते हैं, तो समथिंग न्यू टू लर्न इज ऑलवेज ग्रेट. And I would like to thank entire faculty and wellness genomics for the opportunity to pursue this course. Thanks everyone. Thank you, fantastic. So हमारे ट्रेनर जो SHPL के ट्रेनर हैं, जो सुबह आते हैं, हमको जागो इंडिया जागो बोलते हैं. So I'd like to now go to Subhashish Sarkar. So how has been your journey by of being a certified genomic wellness consultant? Thank you so much sir. पहले तो Velocity Genetics and Vignet के सारे फैकल्टी को मेरा धन्यवाद. ये CCNG का जो कोर्स रहा लास्ट 2 महीने का, ये एक्चुअली मुझे हेल्प किया 2 तरीके से. मेरा मतलब बाहर देखने का जो नजरिया को बदल दिया एक्चुअली. फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर के रूप में एज ए हेल्थ केयर ट्रेनर मैं काम करता हूँ SHPL में. तो अभी क्या हुआ, जब कोई कस्टमर्स आते हैं या डिस्ट्रीब्यूटर्स पूछते हैं, तो एक्चुअली उनका जो प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत सारे इधर SHPL के मेंबर्स भी शामिल हुए हैं आज. सो बहुत सारे ऐसे लोग बोलते हैं सर ये 2 महीने से 3 महीने से मैं एसिडिटी के खा रहा हूँ, ये प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट खा रहा हूँ, मेरा गैस एसिडिटी नहीं मतलब ठीक हो रहा है. पहले तो हम लोग समझ नहीं पाते थे, लेकिन ये कोर्स से अब भी हम लोग समझने लगे कि आप आटे की रोटी खाते हैं, तो बोलता है हाँ खाते हैं. सो आपको शायद ग्लूटेन इंटॉलरेंस है, जिसके बारे में जानता था, लेकिन इस CCNG क्लास ने और भी मतलब सही से नॉलेज दिया. तो जब उसको बंद करवाते हैं तो ऐसा 2-3 रिजल्ट्स हाल ही में मुझे मिला SHPL से. और दूसरी बात है, जब कोई डिस्ट्रीब्यूटर या कोई लीडर या कोई नेटवर्कर आते हैं, उनके टीम का कोई इश्यूज बताते हैं, बहुत गुस्सा हो जाता है, ये होता है वो होता है, तो रिद्धि मैम ने सिखाया था डोज. तो उनको एक ही बात कहते हैं कि आपका डोज बढ़ाना होगा अभी, तो आपका कॉर्टिसोल लेवल बढ़ गया, ये बढ़ गया, वो बढ़ गया, तो आपको ऐसे ऐसे. तो ये जो सीख है, एंड स्पेशली मैं थैंक यू करना चाहूंगा जो लास्ट क्लास में मैं डिस्कस कर रहा था मेरे बेटी के बारे में, छोटी 9 मंथ के बच्चे के बारे में. थैंक यू रिद्धि मैम एंड थैंक यू CCNG कोर्स के रियली उनको ग्लूटेन इंटॉलरेंस था. जब वो सेरेलैक से व्हीट को हटा दिया गया, अब भी वो बिल्कुल सही है, रात को वो प्रॉब्लम नहीं हो रहा है. सो थैंक यू सो मच. एंड स्टैन सर जैसे बोल रहे थे हेडमास्टर और टीचर्स, हेडमास्टर तो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है ही, and teachers are very sweet, especially Reena ma'am and Riddhi ma'am. Thank you so much. और हमारे जो पार्टिसिपेंट्स थे, हमारे जो क्लासमेट्स थे, स्पेशली मदन सर, सतीश सर, मतलब हैट्स ऑफ टू यू. राजकुमार सर, पार्थो सर थोड़ा सा बाहर है आज, वो नहीं उपस्थित हो पाए.
इन लोगों को देख के हम लोगों को, स्पेशली मैं और अनुषा मैम जब बात करते हैं, हम लोगों को अनुप्रेरणा मिलता है। लास्टली कहना चाहूंगा कि ये जो कोर्स है ये सभी को लेना चाहिए, चाहे आप हेल्थ केयर इंडस्ट्री में हो, चाहे आप हेल्थ केयर प्रोवाइडर हो, चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे आप नहीं हो, कुछ भी हो, लेकिन ये कोर्स से आपका जिंदगी बदल सकता है, देखने का नजरिया बदलेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, तो इफ देयर इज एनी वन पर्सन हु वुड लाइक टू स्टिल शेयर, जो स्टूडेंट्स हैं आप कर सकते हैं, बट देन जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, दैट्स अ फैकल्टी, शी इज अ न्यूट्रिजनोमिक काउंसलर, शी इज अ सीनियर न्यूट्रिशनिस्ट एंड शी आल्सो डज अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट ट्रेनिंग at SHPL. I'd like to invite Riddhi Shah, one of the faculties of this batch. Of course, we had Reena Baliga as well. She's not available for this webinar. So Riddhi, over to you. Thank you, sir. Thank you so much for giving me this opportunity today. And मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी को यहाँ पर देखकर. I'm so proud of each one of you. Meenu, Satish ji, Subhashish, Anusha, Mr. Iyer, and Purnima. There are so many people I would like to sincerely thank for making us teachers, because हमने भी सीखा है और आपको भी सिखा रहे हैं हम. But thank you so much for being so patient. आपने बहुत अच्छे स्टूडेंट की भूमिका निभाई है, I must say. आपको हम जो बोलते थे आपने वो टास्क किया है, and आज इसीलिए आप आज you'll be passing out with flying colors today, right? And I'm very proud on behalf of Reena also. She couldn't make it, but I'm really proud of all of you. And मैं एक ही चीज आपको हमेशा एक कोट है जो मुझे बहुत मेरे दिल के करीब है. I would like to end by saying that quote, and it is a very famous quote by Maya Angelou. She says that when you learn, teach others. When you learn, teach, and when you get, give others. Yeah, so this is the most powerful quote I have ever come across. कि आपको अगर कोई भी चीज मिलती है आप उसको 10-fold दीजिए back to the society. अगर आप सीख रहे हैं तो आप उसको सिखाइए, और अगर आपको कुछ मिल रहा है तो आप उसको आगे फॉरवर्ड करिए, दीजिए लोगों को जिनको उसकी जरूरत है. So yes, with that I would like to say thanks to each one of you, and thank you Stan sir for organizing such a brilliant course which helps people spread the message to other people. And उसी तरह से हमारी जो community है वो strong होती है, हमारा जो nation है वो healthy रहेगा. Yeah, and thank you all you eminent speakers of the day. I'm really proud to be a part of this course, कि मुझे कुछ नया सीखने मिलता है from every person that I meet here. Yeah, thank you so much. Thank you, Riddhi. I think you've been always very, very energetic and then teaching with a lot of passion and commitment. I'd like to now announce the results. That's what you're here for. तो आपको देखना है. But at the same time, उसके पहले I'm itching to ask Aarti ma'am from Surat to unmute and उनका experience, क्योंकि जब मैंने उनको पूछा कि आपको एक कोर्स करना चाहिए, she was quite reluctant. लेकिन जब उन्होंने एक क्लास अटेंड की, she said नहीं मुझे करना है. So Aarti ma'am, your experience. Yes sir, I would really like to thank you that you forced me, that you once come with one lecture, और पहला एक लेक्चर अटेंड करने के बाद मुझे ये हुआ कि नहीं, इसमें काफी कुछ ऐसा है जो मैं सीख सकती हूँ, समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं इस बैकग्राउंड से बहुत दूर हूँ. नो डाउट मैं इसका जो हेल्थ सप्लीमेंट होती है उसका स्टोर रन कर रही हूँ, पर मेरा काम है प्रोडक्ट देना, पैसे लेना और थोड़ी बहुत एडवाइस देना जो मेरा नॉलेज है. पर आपके अप्रिशिएशन के बाद आपने बोला कि you have a potential, you should try at least once, and I tried, and I'm really feeling very good nowadays कि नहीं, इसमें काफी कुछ डिफरेंट है. हर एक चीज को हम कॉमन नहीं ले सकते हैं, हर किसी को हम कॉमन एडवाइस नहीं दे सकते हैं. सबका एक इंडिविजुअल लाइफस्टाइल है, और उसके बेस पे अगर हम कुछ करते हैं तो उनके लिए भी सही है और सबके लिए सही है. खुद की हेल्थ को भी मैं अलग तरीके से देखना शुरू किया है. So thank you so much, Stan sir, and also I would like to thank all the faculty members, Reena ma'am, Riddhi ma'am, to help us a lot and give us depth knowledge about science of the DNA, and also what nutrition we should take. So I'm really very grateful for this thing. Thank you, sir. Thank you, Aarti ma'am. Thanks for sharing, and thanks for doing this course. So I'm sure you're all ready for the result now, but before which I just want to tell you that the next batch is going to start this Saturday, 1st October. So if you want to enroll for the class, well, of course, you can get in touch with the people who have invited you here. SHPL people will get broadcast messages, but here is a little detail about the
So the name of the institute is Vignet. So you can go to the website called इस वीडियो में हम समझते हैं कि जो नई शिक्षा नीति myvignet.com 2020 आई है इसमें क्या-क्या of course, you can register now. So are you all ready for the final module of this convocation ceremony? And that is especially very exciting for the students कि जिन्होंने क्या performing किया हुआ है. It's a little unique, different way of assessing your performance. यहाँ पे आपको पढ़ना है, actually रट्टा नहीं मारना है, पढ़ना है. So are you all ready? अगर ready हैं तो please type yes so that you can keep congratulating. So let's get started. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? The show So the countdown starts in 10, 9. Who is the rank achiever? 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, so these are the people who have passed in first class. So Sunil Pant from Delhi, 60%. Alok Singh, OP Mathur, unka actual naam hai, from Patna, Bihar, 65.2%. Bharat VG from Chennai, Tamil Nadu, 82.8%. Abhijit Ravan from Pune, Maharashtra, 80.2%. थोड़ा sequence change हुआ है. Tarlin Kaur from Bareilly, Uttar Pradesh, 86.4%. And our own SHPL के trainer, Mr. PV Rajkumar, 87.6%, close to 100%, but 87%. So, सभी लोगों के लिए, all 6 people, let's congratulate. Your chat box has to now be very, very, busy. So, आप अपना congratulations सभी लोगों के लिए दे दीजिएगा. So, these are the people who have passed. So, congratulations to all of them. So, now let's get the next category, and that is the distinction students. Let's see who are the people in the distinction category. Congratulations, Draupad Maharaj. He is a very young boy from Bengaluru, Karnataka. उन्होंने लास्ट बैच में एनरोल किया था, could not complete it, ये बैच में ऑप्ट किया, and he's come with 90.4%. So anything in 90 is far better. So he is getting his certification as a distinction student. So Draupad. So the next category are the rank holders. So let's really look at who are the rank holders. The top 10 ranks. Vinay Kumar is from Pathankot, Punjab, one of the SHPL Triple Crown ambassadors. So he's at 94%. Just look at the percentage of marks. So Vinay Kumar, बहुत बताइए. Vinay Kumar is ranked number 10 amongst all the. Let's look at who is number 9. Rank number 9 is rank number 9. So they have scored 94.4%. Surya Narayana R. Iyer from Mumbai, Maharashtra, and Madan Mohan Singh, one of the youngest students. Every time with a smiling face, he's from Delhi. So Madan Mohan Singh, so you've done a fantastic job. 94.4% is ranked. So let's look at now who is ranked number 8. Tasneem M. Madraswala. She's from Erode, Tamil Nadu. Tasneem ma'am, congratulations to you. I had a nice time meeting you all in Chennai last week. So we had a fantastic beginning with the genomic wellness mission that you're doing. I'm sure you can lead now in Chennai and South India. So that's she's at number 8. Number 7. Aarti
Bharti Patel just spoke. She said, she's not from genomics background. She scored 95.6%. So she is at 7, rank number 7. So congratulations, Aarti ma'am. I'm sure अभी SHPL के products आप बहुत ज्यादा बेहतर तरीके से लोगों को dispense कर सकते हैं और उनके combinations को change कर सकते हैं. Sixer is our engineer. Engineer is now into human engineering. 96.8%. Very, very, very thin margins right now. So he is at number 6. So Satish B. Amritkar, you are just not an engineer, a human genomic engineer and a certified genomic wellness consultant. So hearty congratulations. Just imagine, just 2%, and she is at rank number 5. Sri Purnima, very young girl from Coimbatore, Tamil Nadu. So she's done fantastic. So 98%. Sri Purnima, I think you have a great responsibility in the South Indian zone to perform as a genomic wellness consultants. So only 4 ranks left. Let's see next. If you see the difference of marks is just in decimals right now. So it's 98.4%. इसका मतलब अभी 3 rank और बाकी है. They have done much better than this. But this is Meena Lal from Delhi. You just आपने सुना उनको. And Dr. Partha Pratim Mukherjee, our SHPL trainer from Kolkata, West Bengal. So congratulations to Dr. Partha and Meena Lal. So you are at rank number 4, and we're left with now 3 more ranks. So please continue. So number 3, who is at number 3? Dr. Vishwajit Roy, he's from Mumbai, Maharashtra, and then he's at 98.8%. So that's like he's just got 3 questions wrong, and he has done a phenomenal job. So Dr. Vishwajit Roy, आपके लिए बहुत-बहुत बधाइयाँ, and then I'm sure you will have a lot to do in the field. So last 2 ranks, I think you must be very, very anxious. So who is this? Who are these? Number 2, we have Subhashis Sarkar, the head of training department of SHPL, 99.2%, and Reshma Kalavar from Pune, Maharashtra. Medical background में है, लेकिन काफी लगन के साथ उन्होंने एक कोर्स को अटेंड किया, हर क्लास को अटेंड किया, सुना, and they answered all the questions and they did really well. So बहुत-बहुत बधाइयाँ रेशमा मैम. I think अब आप genomic wellness के एक certified consultant बने हैं, तो आपका कारोबार, आपका genomic wellness का कारोबार अभी बहुत ज्यादा बढ़ेगा. So who are we left with? So we are now with only one person who I was surprised because I never expected Anusha to do it. I off the record asked her also, saying that how the classes are going on. So it's been very, very transparent. कोई bias नहीं था, कोई favor नहीं था, and उन लोगों ने मेहनत किया, काफी training department में वो discuss करते थे. And in the history of Velocity Genetics, 300 plus students, there's only one student who had hit 100% in batch number 7, and Anusha Sen is the second student. And double dhamaka ye hai, today also happens to be her birthday. So that's a lovely birthday gift that she can get from herself because she has worked hard. And so aap sabhi log unko birthday ki bhi badaiyan de sakte hain. And to be the number 1 rank holder with 100% is an extraordinary achievement. So only 2 students still have it. So definitely sing together. And celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations
I want the world. All right, so thank you very much, everybody. So, once again, congratulations on behalf of Velocity Genetics and Vignet. आप सभी लोगों के लिए बहुत बधाइयाँ हो. And next batch हमारा start होगा on 1st of October. आप में से जितने भी लोग हैं जो इस कोर्स के लिए अटेंड करना चाहते हैं, रजिस्टर करना चाहते हैं, please ensure that you register yourself. All the students who have been passed with flying colors, आपके certificates will be available to you. It's a beautiful A3 size certificate that you will be getting, and आपके flyers भी ready हैं, so they will be circulating that and broadcasting that as well. So I think it's 9:30, a little more than what we expected. So on behalf of Velocity Genetics, I'd like to first thank our anchor, Dr. Usha Nair, because she's also is going to be one of the authors, and probably very rare author who's writing on genetics and especially on nutrigenomics in India. So hearty congratulations. जब book release होगा तो definitely will let you know. So Amazon में वो available रहेगा, and it's from an established printer. We'll give you the details very soon. I'd like to also acknowledge Dr. Ravi Vairagade. In spite of his busy schedule, he's been here and he gave his piece of wisdom to all of us. So thank you, Dr. Ravi Vairagade. Thanks, Dr. Asif, for obliging, and in spite of your busy schedule you just made, and then gave some insights. Dr. Anil Bajpai, you've been the sort of a man of the match today. I think you stole the show by saying what people hesitate usually to say, but then being upfront and then telling what the truth is been really fantastic. I'd like to thank Riddhi Shah. She's all around all the time, and all our students, especially the rank holders, people who have had distinctions, and people who have stayed back in spite of it being a little late. So that's Anusha for you. That she's very happy. Once again, a happy birthday on behalf of everybody, and then also congratulations for being a rank holder. Thank you so much, sir. It was not expected कि सिर्फ मैं ही बनूंगी. So it was really unexpected and our best gift I have ever got in my life. So thank you everyone. Thank you so much. All right, so all gifts come with a lot of responsibility. So now your responsibility starts. So you'll have to spread genomic wellness to people in SHPL, in Velocity Genetics, and all around us, क्योंकि इसके बहुत सारे फायदे हैं. And with this, I come to this end of this program. Thanks once again for all of you. You have a great weekend. You have a great evening as well. So eat well, sleep early. It's a little late, and then have a great Sunday, and then good time ahead. So thank you very much. I wish you good health and a lot of wealth as well. Good night.